Hello everyone, welcome to my channel Science Classes. So today we are discussing here class 10 science chapter 1 chemical reactions and equations. इस चैप्टर के बारे में कुछ पॉइंट हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में. सो अगर आपको नहीं देखा है तो उसको देखिए, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं. सो आज हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सेकेंड वाला के बारे में बात करेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में. सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? और डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड and that compound will act as a reactant, breaks down into two or more product, है ना. it will break down into two or more product. ठीक है. so it is just opposite like a combination reaction. okay, so it can be generally represented as AB. okay, AB gives A plus B. that means AB is a compound. we have taken a compound AB, so when it will break, it will give two product A and B. so decomposition reaction is classified into three types. how many types? Three types. First one is thermal decomposition. what is this thermal decomposition? Listen, when decomposition reaction is carried out by heating. how? by heating. that means when the compound will break by heating, then it will be called the thermal decomposition. okay, see example here, FeSO4 is breaking down into, actually the formula of ferrous sulfate is FeSO4 into 7H2, because there will be 7 molecules of water present in the FeSO4. so when we will heat it, it will be decompose into FeSO4 plus 7H2O. that means we cannot say decompose, but when we will heat it, the 7 molecules of water will be losing and FeSO4. this FeSO4 is anhydrous ferrous sulfate. okay, anhydrous ferrous sulfate, that means there will be no water, and we can see that these water molecules are always already removed. so again we will heat this ferrous sulfate. okay, again this ferrous sulfate will be heating, the anhydrous ferrous sulfate will be again heating, then we will get here ferric oxide Fe2O3. okay, and two gases also will be released, sulfur dioxide and sulfur trioxide. so I had given here note also what is reaction. you can see here, see here ferrous sulfate crystal. okay, the ferrous sulfate crystal in the starting one, FeSO4 into 7H2O, it will be in the light green color. okay, it will be in the light green color. so when it will be lose the water, it forms the anhydrous ferrous sulfate, and the color will become what? the color will become white. the color will become white here. so on further heating, it will break into ferric oxide, and the color of the ferric oxide will be dark brown, and two gases also will be released, that sulfur dioxide and sulfur trioxide. one more example I have taken here, calcium carbonate. it is also called the limestone. and one more thing about calcium carbonate, I can tell you, the calcium carbonate is a formula of marble also. ये मार्बल का भी फार्मूला होता है. सो जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ब्रेक हो जाएगा. तो कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड द क्विकलाइम. सो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और लाइमस्टोन इट ब्रेक्स इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. सेकेंड वन हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. इसका सेकेंड पार्ट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सेकेंड पार्ट इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. इसमें क्या होता है, मोस्टली हम लोग आयंस
आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करते हैं इसमें, ठीक है ना। आयनिक कंपाउंड इज ब्रेकिंग मोस्टली इन दिस. So when decomposition reaction is carried out by passing electricity to break ions, that is called the electrolytic decomposition, है ना. When decomposition reaction is carried out by passing electricity to break ions, that means when we prepare the solution of NaCl and water, okay, and if we pass the electricity through it, then this NaCl will be break into Na and Cl2 gas. Okay, that means first prepare the solution of NaCl and water and try to break the ions of NaCl. So we will pass the electricity in that, then these ions will be break as a sodium and chlorine gas. Okay, third number, photo decomposition. It is very important also. So when decomposition reaction is carried out by exposing into light, है ना. When decomposition reaction is carried out by exposing into light is called photo decomposition, ठीक है ना. जैसे क्या बोलते हैं हम लोग कि when कोई भी जो decomposition reaction है, okay, that will be carried out by exposing into sunlight or light, then it will be called the decomposition reaction. So example we can see here, silver chloride is breaking down in the presence of sunlight in the form of Ag and chlorine gas, silver and chloride gas. Second is that AgBr, silver bromide. Okay, silver bromide is also breaking down in the form of silver and bromine in the presence of sunlight. Hope you have cleared it. Okay, so next, so when AgCl will be exposing into sunlight, it will be break into silver and chloride, Ag and Cl2 gas. Okay, then second one is C, AgBr, silver bromide. Ag क्या है, AgBr क्या है, silver bromide. This also when it will be exposed into sunlight, it will break into silver and bromine, ठीक है. So just remember it, these reactions are used in black and white photography. कौन सा, ये decomposition of AgCl and decomposition of AgBr are using in the black and white photography. So one more thing, that decomposition reaction, okay, decomposition reaction require energy in the form of heat, light and electricity, ठीक है. This you have to remember it. Okay, decomposition reaction require energy in the form of heat, light and electricity to decompose the compound. So reaction in which, ध्यान दीजिए यहाँ पे, reaction in which energy is observed is known as endothermic reaction, है ना. जिस किसी भी रिएक्शन में अगर एनर्जी ऑब्जर्व होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. और जैसे इसका जस्ट एक अपोजिट भी है कि जिस किसी भी रिएक्शन में एनर्जी होता है रिलीज, इफ एनर्जी विल बी रिलीज, दैट विल बी कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इसके बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं, आप वहाँ देख सकते हैं इसको और पढ़ सकते हैं. इसके बारे में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है वहाँ पे. सो थर्ड रिएक्शन जो यहाँ पे है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, पहला था कॉम्बिनेशन, दूसरा हो गया आपका डिकम्पोजिशन और थर्ड इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है. और रिएक्शन देखिए क्या है इसमें, रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल, क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. मतलब किससे, उसके सॉल्ट लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या करता है, उसको डिस्प्लेस कर देता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके ना. सो इट कैन बी जनरली रिप्रेजेंटेड एज, इसको हम लोग अपने ऑन वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे. ए इज अ मेटल, BC इज अ कंपाउंड हियर, है ना, BC इज अ कंपाउंड हियर. तो क्या करेगा,
सपोज दैट कि मान लीजिए कि ए जो है वो मोर रिएक्टिव है, ए जो क्या है अधिक रिएक्टिव है, तो क्या करेगा इसको, ये बी को डिस्प्लेस करेगा, है ना, बी को डिस्प्लेस करेगा। और सी क्या इसका है, सी जो है बी का सॉल्ट है ना, तो ये क्या बन जाएगा फिर ए सी, है ना, क्या बन जाएगा ये ए सी, क्योंकि बी क्या हो गया डिस्प्लेस हो गया, बी था लेस रिएक्टिव, तो ये क्या बन जाएगा ए सी प्लस बी। मान लिया जाए कि हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, है ना, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में अगर आयरन को डिप करते हैं, हम लोग आयरन को डिप करते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो आयरन जो है वो क्या है, आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है, तो Fe प्लस CuSO4, तो क्या मिलेगा हमको, सी, ये Fe क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, है ना, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, तो FeSO4 प्लस Cu मिल जाएगा आपको, FeSO4 प्लस Cu, ठीक है, ये 9 कुछ भी नहीं है, ये 9 नहीं है, ठीक है, FeSO4 है, 9 इज नॉट देयर, ओके ना। सो यहाँ पे CuSO4 कॉपर और सल्फेट जो है कॉपर का सॉल्ट हो गया, ठीक है ना, तो इसके सॉल्ट से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया कौन, आयरन, एंड इट फॉर्म द FeSO4। ध्यान दीजिए यहाँ पे, हियर आयरन डिस्प्लेस कॉपर, आयरन डिस्प्लेस किसको कर रहा है, कॉपर को, किससे, फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। तो कॉपर सल्फेट कैसा कलर यहाँ पे है, ब्लू, कॉपर सल्फेट कैसा कलर इसका है, ब्लू है, एंड फॉर्म्ड क्या करेगा, क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे हमको, FeSO4 फेरस सल्फेट ग्रीन कलर में, ठीक है। आगे देखिए, इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप यू कैन राइट मोर एग्जाम्पल itself, it will be helpful for you in the and you can practice for this also. नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए, रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स, बिटवीन द रिएक्टेंट्स, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कि ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आयंस का एक्सचेंज होता है दोनों में, इन दोनों में क्या होता है, आयंस का होता है एक्सचेंज, ठीक है, तो आयंस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको हम लोग वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, ए बी कंपाउंड हो गया, CD दूसरा कंपाउंड हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, आयन का एक्सचेंज होगा, और यहाँ पे दूसरा डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए AB एक कंपाउंड है, CD दूसरा कंपाउंड है, तो यहाँ पे क्या होगा, आयन का एक्सचेंज होगा, ओके, एंड दे विल फॉर्म द CB एंड AD, ओके। तो एग्जांपल लिए हम लोग, देखिए यहाँ पे सोडियम सल्फेट Na2SO4, क्या है, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है। एक्वस का मतलब क्या होता है हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, ठीक है। बेरियम क्लोराइड, ओके, व्हेन सोडियम सल्फेट इज डिजॉल्विंग इन द बेरियम क्लोराइड, हम लोग क्या किए हैं, सोडियम सल्फेट को डिजॉल्व कर दी किसमें, बेरियम क्लोराइड में। तो अब क्या होगा यहाँ पे, बोलिए क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, आयंस का एक्सचेंज होगा, किसके किसके बीच में, SO4 और Ba के बीच में आयंस का एक्सचेंज होगा, है ना। सो SO4 क्या होता है 2- एंड Ba होता है 2+, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आयन का एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा ये, BaSO4 एंड NaCl, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, हियर व्हाइट प्रेसिपिटेट BaSO4 इज फॉर्म्ड, है ना। क्या होगा, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट, है ना। व्हाट द मीनिंग ऑफ प्रेसिपिटेट, जो पानी में नहीं घुलता हो, जो पानी के ऊपर तैरता रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सो हियर व्हाइट प्रेसिपिटेट BaSO4 इज फॉर्म्ड, कैसे फॉर्म हुआ, बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 2- एंड Ba 2+। तो ये दोनों ने अपना आयन को एक्सचेंज किया, जिससे हमको ये BaSO4 फॉर्म हुआ, एंड अदर प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ, अदर प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ओके। सो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स मोस्टली जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो सारे NCERT बेस्ड है, ठीक है। सो NCERT बेस्ड है, इसलिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा ये, ठीक है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही हेल्पफुल है, ओके। सो व्हेन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड
is mixed, then white substance which is insoluble in water is formed, है ना। सो जब हम लोग क्या करेंगे कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिक्स कर रहे हैं तो what will be formed? The BaSO4 will be formed, that will be insoluble in water and it will be white in color also. So this insoluble substance formed is known as precipitate. जो substance वहाँ formed हुआ है ना उसको क्या बोलेंगे हम लोग, precipitate होगा बोलेंगे। And any reaction that produce a precipitate, and any reaction that produce a precipitate can be called a precipitation reaction। ठीक है, ऐसा कोई भी रिएक्शन जो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। तो जो ऊपर में एग्जांपल लिए हम लोग Na2SO4 है ना, उसको हम लोग बोल सकते हैं Na2SO4 वाला है ना एग्जांपल ऊपर में, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कैसा, उसको हम लोग बोल सकते हैं ये वाला एग्जांपल देखिए Na2SO4 प्लस BaCl2 gives BaSO4 प्लस NaCl। This is the also example of precipitation reaction। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, क्या है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो one reactant get oxidized while other get reduced during a reaction. Such reaction are called oxidation, reduction और redox reaction। ठीक है, क्या है इसमें, one reactant gets oxidized while other get reduced during a reaction. Such reactions are called oxidation, reduction और redox reaction। ओके, सो यहाँ पे देखा जाए एग्जांपल इसका जो है ये है कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। क्या है, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर जो हो रहा है ऑक्सीजन को लूज कर रहा है ना, कॉपर इज लूजिंग द ऑक्सीजन, सो इट विल बी कॉल्ड द रिड्यूस्ड। ओके, एंड हाइड्रोजन इज गेनिंग द ऑक्सीजन, सो इट विल बी कॉल्ड द ऑक्सीडाइज्ड। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल यू सी MnO2। क्या है, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस HCl। ओके, then we are getting your MnCl2 plus H2O plus Cl2। ठीक है, okay, so here you can see that MnO2, okay, Mn is losing the oxygen, Mn is losing the oxygen and becoming MnCl2, so we can say that it is reducing। ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है reduced। then HCl here, hydrogen is gaining the oxygen and forming H2O, so we can say that hydrogen is oxidizing। okay, so one point is here, remember it, if a substance gains oxygen or lose hydrogen, okay, if a substance gains oxygen या lose hydrogen then it is oxidized। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, oxidized बोलते हैं। if a substance lose oxygen, अगर substance क्या करता है, ऑक्सीजन लूज करता है या हाइड्रोजन गेन करता है किसी भी रिएक्शन के ड्यूरिंग में, सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 5 टाइप का केमिकल रिएक्शन, वो खत्म हो गया। अगला हमारे पास है कोरोजन। कोरोजन तो आप लोग को पता होगा ऑलरेडी, यू हैड स्टडीड इन क्लास 7-8। सो हियर आल्सो वी विल डिस्कस व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस, है ना, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस लाइक एयर, मॉइस्चर, एसिड etc, then we can say that the substance is getting corrode। ओके, मतलब कि डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो बर्बाद हो रहा है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अ कोरोजन। सो व्हेन यू आर एग्जांपल यू हैव एग्जांपल व्हेन यू आर एक्सपोजिंग द सिल्वर, ओके, इन एयर एंड मॉइस्चर, आफ्टर लॉन्ग टाइम यू कैन सी दैट द ब्लैक कोटिंग विल बी फॉर्मिंग ऑन दैट एंड द ग्रीन कोटिंग विल फॉर्म ऑन द कॉपर। ठीक है, देन कोरोजन डैमेज, कोरोजन क्या करता है, ये डैमेज करता है द सब्सटेंस मेड अप ऑफ मेटल। किससे बना, जो सब्सटेंस मेटल से बने हुए हैं उसको ये डैमेज करता है, जैसे कि कार बॉडीज, आयरन रेलिंग्स, ब्रिजेज। ठीक है, ये सब को डैमेज करता है। सो इट कैन बी प्रिवेंट बाय ऑयलिंग, है ना, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग एंड गैल्वेनाइजिंग।
By this process we can prevent the object from the corrosion. So galvanizing is very important. Okay, we will discuss in the next video, because we don't I don't want to make this video too long. Okay na? So these things we can discuss afterwards in next video. See the rancidity. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रैंसिडिटी, मतलब कि फूड का ख़राब हो जाना, है ना, फूड बिकम रैंसिड, उसमें फूड से गंध आना, स्मेल आना, ठीक है। इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन, क्या है, स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, है ना, स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ, मतलब कि जो फैट और ऑयल जो है वो क्या होता है, दैट विल बी ऑक्सीडाइजिंग बट स्लो, ओके, बट स्लो. So the process of slow oxidation of oil and fat present in the food material in the change of smell and taste, that is known as rancidity. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, rancidity बोलते हैं. So how can we prevent the food from rancidity? See, we have here two prevention. So keeping food in airtight containers, है ना, when you are keeping the food in airtight containers, this will be slow down the oxidation. Okay, and second is that nitrogen gas helps to prevent the chips from getting oxidized, है ना, चिप्स को क्या करता है, ऑक्सीडाइज होने से बचाता है कौन, नाइट्रोजन गैस. You had seen that the कुरकुरे पैकेट, चिप्स पैकेट are filling with air only. उसमें जितना कुरकुरे होता है उससे ज़्यादा उसमें हवा होता है ना, तो वो जो हवा है वो क्या है, वो नाइट्रोजन गैस है ना, जो आपको चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है. सो होप you all understand very well. If any problem, you can comment me in the comment box. Okay, thank you.